Happy evening, dear students. Hope you all are fit and fine with your family members. As we all know that the coronavirus made our lives upside down and the whole country is in lockdown condition by itself. The country is struggling with various regions and education is one among them. In this scenario, we must take our studies, our academic activities in a serious way. Though online classes have been started, and you all must take advantage of this opportunity. Though your teachers are working hard for your betterment only, right? So let's come to the textbook. In last week we have completed Robinson Crusoe and you have submitted answers, but some of you have not submitted. Those are instructed to submit in next class positively. Fine. So now come to the next chapter, which is our My Shadow. Unit 3, My Shadow. So shadow, what do you mean by shadow? What is meant to be? Shadow means, a dark or black shape which is being produced by a body, by your own body, by something. Okay. Which is coming right between the rays of light and a surface. Getting my point? Shadow means, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो शेडो मीन्स एक ब्लैक या डार्क कलर का एक डार्क शेप है जो कि एक बॉडी वट एवर बॉडी दैट मे बी ए थिंग दैट मे बी योर बॉडी वट एवर जिससे वो प्रोड्यूस होता है उसको हम शेडो बोलते हैं. So what shall we do now? We shall read the poem. Okay, at first we shall read the poem, then after we'll understand one by one. So let's read it out. My shadow. Do you know whenever there is light someone follows you? Have you ever wondered who it is? Read and enjoy the poem. So let's begin the class with the new poem here, My Shadow. Fine, let's start. I have a little shadow that goes in and out with me, and what can be the use of him is more than I can see. He is very, very like me from the heels up to the head, and I see him jump before me when I jump into my bed. The funniest thing about him is the way he likes to grow, not at all like proper children, which is always very slow. For he sometimes shoot up taller like an India rubber ball, and he sometimes gets so little that there is none of him at all. One morning, very early, before the sun, I was up. I rose and found the shining dew on every buttercup. But my lazy little shadow, like an errant sleepyhead, had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. Robert Louis Stevenson. Who has written this? Robert Louis Stevenson. Here are some new words which have been given by the textbook. India rubber ball, a ball that can bounce very high. Here India has mentioned. हम इसको देसी बॉल बोल सकते हैं. इंडिया हमारा कंट्री है, हमारे कंट्री का नाम इंडिया है, तो इंडिया रबर बॉल मतलब इंडिया में जो बॉल प्रोड्यूस होता है, या फिर वी कैन से इट इज़ अ देसी बॉल. ए बॉल दैट कैन बाउंस वेरी हाई, मतलब जो देसी बॉल होता है उसको आप डालोगे तो वो बहुत ज़्यादा उछल के जाता है, एंड व्हाट इज़ कॉल्ड एज बाउंस. ओके. बटरकप, a name of a flower whose color is yellow. Errant, here given errant means bad. Errant sleepyhead means completely inattentive. Sleepyhead, you sleepyhead, you inattentive. बोलते हैं जब किसी को हम डांटते हैं ऐसे बोलते हैं you sleepyhead. Okay. Errant sleepyhead means completely inattentive, ना सुनना. Inattentive means attentive, you know what is attentive? Inattentive means its opposite word.
ओके, बिल्कुल ना सुनना, जैसे बिल्कुल ना अटेंशन में रहना, it is inattentive. So we have read the poem. Okay, you must follow the poem how I read it. So now let's come to understand this poem by reading the lines. I have a little shadow that goes in and out with me. I have a little shadow. Okay, I have a little shadow. मेरे पास एक छोटा सा शैडो है. दैट गोज़ इन, जो कि अंदर भी जाता है और बाहर भी मेरे साथ ही आता है. मेरे साथ अंदर ही जाता है और मेरे साथ ही बाहर आता है. मेरे पास एक छोटा सा शैडो है. एंड व्हाट कैन बी द यूज़ ऑफ हिम इज़ मोर देन आई कैन सी. व्हाट कैन बी द यूज़ ऑफ हिम इज़ मोर देन आई कैन सी. मैं उसको देखने के अलावा और वो ज़्यादा करता क्या है. एंड व्हाट कैन बी द यूज़ ऑफ हिम, उसका और ज़्यादा क्या यूज हो सकता है. मोर देन आई कैन सी, मैं जो उसको देखती हूँ या मैं जो उसको देखता हूँ उसके अलावा उसका और ज़्यादा कुछ क्या काम है. देखते हैं आगे क्या होता है. ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड. ही इज़ दैट शैडो. ही मीन्स हियर हु इज़ बीइंग मेंशन्ड ही. Here the shadow is being mentioned as he. यहाँ पर ही किसको मेंशन किया गया है, कौन है, शैडो. तो शैडो के बारे में बताया गया है. ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी, वो एकदम से मेरे जैसा ही दिखता है. एग्जैक्टली लुकिंग अलाइक मी. ओके, फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड. हील से लेकर हेड तक वो बिल्कुल ही मेरे जैसा दिखता है. एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी. मैं उसको देखता हूँ जंप बिफोर मी. मैं जब भी जंप करता हूँ तो वो मेरे से पहले जंप कर लेता है. व्हेन आई जंप इनटू द बेड, मैं जब भी बेड के ऊपर जंप करना चाहता हूँ वो मुझसे पहले जंप कर लेता है. ओके, नेक्स्ट. द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो. सबसे मज़ेदार चीज़ ये है उसके बारे में, सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि द वे ही लाइक्स टू ग्रो, वो जैसे बड़ा होता है ना, वो जैसे धीरे धीरे करके बड़ा होता है. एंड दैट इज़ द फनीएस्ट थिंग. उसके बारे में ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मज़ेदार बात है. नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो. ये उन बच्चों की तरह नहीं है जो कि बहुत स्लो है. ये तो बहुत जल्दी बड़ा होता है. और ये तो उसके बारे में एक मज़ेदार चीज़ है. ये उन बच्चों की तरह नहीं है जो कि बहुत ही स्लो हैं. फॉर ही समटाइम्स सूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडिया रबर बॉल. इंडिया रबर बॉल, वो कभी कभी क्या करता है, सूट अप, टॉलर, बहुत ऊंचा बढ़ जाता है, लाइक इंडिया रबर बॉल. आई टोल्ड यू व्हाट इज़ इंडिया रबर बॉल. इंडिया रबर बॉल मीन्स ए बॉल विच इज़ बाउंसिंग वेरी हाई. वो एकदम से इस तरह से टॉल हो जाता है इंडिया बॉल के जैसा, जैसे बाउंस होता है. इंडिया रबर बॉल मतलब देसी बॉल. ठीक है. एंड ही समटाइम्स गेट्स सो लिटिल दैट देर इज़ नॉन ऑफ हिम एट ऑल. कभी कभी इतना लंबा हो जाता है इंडिया रबर बॉल की तरह, और कभी कभी इतना छोटा हो जाता है कि जैसे उसके जैसा कुछ है ही नहीं. समझ में आया. कभी कभी उसके बारे में एक फनीएस्ट चीज़ ये है कि वो बहुत जल्दी ग्रो करता है. ठीक है, वो उन बच्चों की तरह नहीं है कि जो वो स्लो, जैसे कि वो जो बच्चे स्लो हैं, है ना. और वो कभी कभी इतनी जल्दी बड़ा हो जाता है कि जैसे इंडिया रबर बॉल जैसा लगता हो, और कभी कभी इतना छोटा हो जाता है कि जैसे उसका कोई वजूद है ही नहीं. वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप. एक बार क्या हुआ, वेरी अर्ली, बहुत ही सुबह. वेरी अर्ली मीन्स सुबह. बिफोर द सन आई वॉज अप, सन से पहले, सूरज उगने से पहले, सनराइज होने से पहले, आई वॉज अप, मैं उठ गया. एक बार क्या हुआ, एक मॉर्निंग में, एक सुबह में, बहुत ही जल्दी, बहुत ही अर्ली मॉर्निंग में मैं उठ गया. सन आने से पहले, सूरज उगने से पहले, सनराइज होने से पहले मैं उठ गया. आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटरकप. मैं क्या देखा, आई रोज, मैं उठ गया, एंड फाउंड, देखा,
मतलब मुझे दिखाई दिया। द शाइनिंग ड्यू, सुबह सुबह जैसे बूंदे, पानी के बूंदे होते हैं ना, ड्यू ड्यू बोलते हैं उसको। ऑन एवरी बटर कप, व्हाट इज़ बटर कप? इट इज़ a name of a flower. I told you earlier, it is the name of a flower whose color is yellow. Okay. सो जितने भी बटर कप के फूल थे उसके ऊपर शाइनिंग ड्यू मुझे दिखाई दे रहा था उस दिन सुबह। बट माई लेजी लिटिल शैडो लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड, लेकिन मेरा जो लेजी, आलसी, मेरा जो आलसी शैडो था वो लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड, वो एकदम से इग्नोरेंट था, जैसे कि मेरी बात सुन नहीं रहा। मैं उठ गया था लेकिन वो नहीं उठ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो इनअटेंटिव है। मैं उठ गया लेकिन वो मुझे वो सो ही रहा है, वो नहीं उठ रहा है, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। हैड स्टेड एट होम, घर में रह गया। बिहाइंड मी, मेरे पीछे। एंड वॉज फास्ट अस्लीप इन बेड, वो सो गया था। देखो बच्चों, यहाँ पर क्यों बोला गया है? क्योंकि सुबह जब सूरज नहीं आता है, सूरज सनराइज़ नहीं होता है, तब अंधेरा रहता है थोड़ा सा। उस टाइम जब तुम बाहर निकलोगे तुम्हारा शैडो नहीं रहता है, राइट? तो इसीलिए ये बोला है यहाँ पर कि जब मैं बहुत ही सुबह निकला बाहर, तब मैंने बटर कप के ऊपर शाइनिंग ड्यू देखा और मेरा शैडो जो था वो बहुत लेजी था और वो बेड पे ही सो गया, है ना? तो दिस पोएट्री हैज़ ब्रॉट यू बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, and here are the new words. I am again reading here. India rubber ball, a ball that can bounce very high. Okay. Buttercup, a yellow flower. Errant bed, errant sleepyhead, completely inattentive. So you got to know everything about this. I have read about all the lines of this poem, and I must say you will have to read it out again and again unless and until you clear about all the words, all the sentences, okay, all the new words. You need to read it out. Then only in next class we will have our question and answer part. Okay, so I am hanging up. Okay, thank you.